سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. آج کی ویڈیو کی خاص بات پتہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی وہ غلطی بتائیں گے جس غلطی کے بحاف پر ان کو انڈیا سے نکالا گیا، یعنی کہ جلا وطن ہوئے، اور آج پاکستان کے اور جتنے بھی بڑے صغیر کے عالم حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، وہ ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آخر وہ کیوں چاہتے ہیں جس طرح سے انڈیا سے ان کو نکالا گیا بالکل اسی طرح سے پاکستان سے بھی ان کو نکال باہر کیا جائے؟ آخر وہ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی ایکسپوز کر دیا. ہمیں ڈھونڈنے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بنا وقت کو ضائع کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. میں جب انگریزی میں تقریر کرتا تھا نا، الحمدللہ 100% سب فرقے کے میرے ساتھ تھے، سب شیعہ ہو بریلوی ہو سب فرقے ساتھ تھے. بعد میں بمبئی کے پولیس کمشنر نے کہا میں تم سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہے؟ آپ کو اردو میں تقریر کرنا. کیوں؟ عام مسلمان سب مسلمان انگریزی نہیں جانتے، تو میں تم سے ناراض ہوں. تو اس کو خوش کرنے کے لیے اردو میں تقریر کرنا شروع کیا غلطیوں کے ساتھ. بعد میں پیشتی ہوا تو اور شروع کیا. اس کے بعد فتوے آنے لگے ذاکر کافر ہے. کیا اردو میں بات کرنا کافر ہے کہ انگریزی میں؟ وہی چیز انگریزی میں بولا تو بولتے سننے کا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنو، کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں تو انگلش میں بات نہیں کرتا ہوں، ڈاکٹر نائک کو سنو. جہاں اردو میں بات کرنے لگا، اردو تقریر میں زیادہ پبلک آ رہے، انگریزی تقریر میں 5 لاکھ، اردو تقریر میں 10 لاکھ. ذاکر کافر اٹھائے بنتا ہے کامن ہے. میں نے کبھی بھی کس کا جواب نہیں دیا. میرا کیا اصول ہے؟ when people throw stones at you، اگر کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو پتھر آپ تک پہنچے نہیں. دوسرا، اگر کوئی آپ پہ اینٹ پھینکتا ہے اینٹ کو لو اور اپنا گھر بناؤ. تو میں نے کہا ہمارے کانفرنس بڑے ہوتے اور سب کانفرنس اپنے اپنے جماعت کے. ہم لوگ تو میں تو مسلمان ہوں، اور جب مسلمان بولتا باقی ارے ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کیسا کہتے ہیں؟ میں نے بولا کل لکھا ہے قرآن میں. ذاکر بھائی آپ تو ہمارے ہیں، آپ کو تو میں تو رنگے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، میں تو مسلم ہوں. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی بولتا ہے دیوبند سے فارغ ہے، اچھی بات ہے. کوئی مدنی بولتا ہے یہ جائز ہے، اس میں کوئی تفرق نہیں. آپ مدینہ سے فارغ ہے مدنی بولتے ہیں، دیوبند سے فارغ ہے دیوبندی بولے اس کو لگتا ہے، مدنی بولے نہیں لگتا. کیوں؟ یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گیا نا. مدنی بولنا جائز ہے، دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ تو اگر کوئی مدرسے سے فارغ ہے اور مدنی کے لقب سے کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں قاسمی ہوں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم مسلم ہیں. قال اننی من المسلمین 14 بار لکھا ہے، قال اننی من المسلمین، قال اننی من المسلمین. اور آیت کو بھی تعالی ولا کلمۃ قال اننی من المسلمین سے ختم ہوتی ہے. کہو کہ میں مسلم ہوں. مسلم کہاں لکھے ہے کہ یہ کہو دیوبندی کہو یا تبلیغی کرو، جماعت اسلامی کہو، اہل حدیث کرو یا سلفی کہو. ان کہتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں. میں نہیں کہتا ہوں غلط ہے. یہاں پر مجھے بولنا چاہتے ثبوت پیش کرو، آپ بولتے مجھے اعتراض نہیں. میں نہیں بولتا حرام بول رہے. تو میں نے کیا کیا، جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے تو ہم تو ماشاءاللہ آؤ، تو لوگ بولنے ارے وہ مفتی تم کو تمہارے خلاف پبلک میں بات کرتا ہے، تم اس کو بلاتے. تو میں کہا میرے دوست سے، میں قرآن میں کہاں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہاں لکھے خدا نے؟ کوئی حدیث میں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو جنت میں جائیں گے؟ تو میں تھوڑی کچھ حرام کر رہا ہوں. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے میں بات کرو، آپ میرے اسٹیج پہ آ سکتے ہیں، میرا اصول ہے. اس کے بعد وہ اسٹیج پہ میرے اسٹیج سے مجھے گالی، نو پرابلم. پھر وہ میرے دوست بن جاتے ہیں، وہ ذاکر بھائی کیا مہان ہے ماشاء. تو اس ویڈیو سے آپ کو ایک چیز معلوم ہوئی کہ جتنے بھی مفتی حضرات ہیں آپ کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے سے کیوں روکتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اگر آپ نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لیا تو آپ کے سامنے وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی جو چیزیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈیبیٹ کے ذریعے عام انسان تک پہنچا کے اس کو مسلمان کیا. تو میرے بھائی اس وجہ سے اس بندے کو جلا وطن کیا گیا. میں پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں. ہم ایک شخص کو مسلمان کرنے غنیمت ہوگی ان عقائد پر جن عقائد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسلمس کیا. اور آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی، جتنے بھی لوگ تھے دھڑا دھڑ آ کر ان سے سوال کر رہے ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، جوئز ہیں، تمام کے تمام ان سے سوال کر رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ بندہ جواب دے سکتا ہے. لیکن یہ جو سمر عباس ہے اور یہ بسم الحق ہے، ان سے بندہ جا کے کچھ سوال کرے آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ بھائی شیعہ کا مسئلہ ہے، شیعہ عالم سے جا کے پوچھو. دیوبندیوں کا مسئلہ ہے، وہ جا کے دیوبندیوں سے پوچھو. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ مفتی ایک عالم کا یہ کام ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آگے کی لکھے ہے شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں. تیر چبل جان دی جان لکھے ہے. کوئی آپا سننی ہے انہوں پوچھ میں کیا پتا کیوں کر دینا. کڈی وڈی چگڑ یار پرچی لکھن والا مینوں کوئی پتا انہوں پوچھ. دسنا کھلوتا صحیح بابے خادم دا نویں فیس تے دسے ستے اے تیرا بھلا ہو گیا. ایتھے رکھ آدھے نے جی یہ حضرت امیر معاویہ ہیں، حضور اکرم کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی. کوئی مائی کلال ثابت کر دے انہوں نے حضور کے ساتھ جنگ کی ہو. چبل بندہ جس نے پرچی لکھی ہے، شرم ہی نہیں آتی. کہنے کی ہے جنگ بھائی؟ میں پٹھیاں گلاں سوشل میڈیا تے چھلے مچھے مننے نکے موٹے وڈے چھوٹے کتے بلے سارے نے سن کے اپنے عقیدے بدل دے رہندے ہو. تانوں کیا آکھیا ہے؟ اور اگلی بات، حضرت امام حسن اسلام کی شہادت پر جشن منایا. کس نے جشن منایا؟ سب تماشے ہیں. اور ہائے 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 ہائے
जो यजीद के वालिद मुआविया को हजरत कहते हैं यार पर्ची लिखने वाला को मैनू इंटरनेशनल बदतमीज बंदा लगता है यार मैं खुदा दी कसम है मैं तो निजामी आख्या पढ़ लै मैनू मतलब असल सामने खड़ा करना यही तो रौला ना मैं हूं 1.5 घंटे की तकरीर गोल करा चबल बंदे की खातर मेरे सामने वो आवे जिन्हें 16 साल पढ़िया होवे मैनू रगड़न ते भी मजा आवे पर ठीक है जी हो गया जनाब हो गया मतलब ए मैं बस की थी इसको चबल बंदा लगता जिन्हें लिखी है और ये लफ्ज़ तो पता लगता है कन्फर्म बेगैरत है मेरा गल नोट कर बहुत नाजुक सूरत हाल है जी बेचारे को हिला ही मत बिठाना है एक पढ़े लिखे मुसलमान में और एक जाहिल इंसान में ये फर्क होता है। ओ हुण के पेंट वाला डॉक्टर आया जे ओदा इस्तकबाल ते नचदे फिरदे जे मैं आख्या जेना दा जींदा वली एडा कोड़ा है उन्हां दे मरियां दा हाल की होएगा अगर शक्लो सूरत ते फैसले होने हुंदे अबू लहब इतना हुसीनो जमील सी कदी भी जहन्नम अंदर न जांदा और जे शक्लां ते फैसले होने हुंदे सैयदना बिलाल कदी भी जन्नत अंदर न जांदे ये अकीदा तौहीद दी बरकत है बिलाल चलदे जमीन ते ने इन्हां दे चलन दी आवाज कायनात दा रब जन्नत अंदर पहुंचा रहे हैं। वो अक्सर काफी भाई मुझे कहते हैं कि यार ये पंजाबी लैंग्वेज की जो है ना हमें समझ नहीं आती तो आप जरा क्लियर करें ये क्या कहना चाहते हैं तो मैं आपको क्लियर करता जाऊं। ये जो मुफ्ती समर अब्बास है ना मैं तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूँ ये हर किसी की शक्ल पे बात करते हैं मतलब वो पोजा है काले रंग का है मनहूस है ऐसे है वैसे है और सुनियों को देखो ये जो बरेलवी है ये कितने एक नूरानी होते हैं कितने प्यारे होते हैं अल्लाह ताला ने इनमें हुस्न जो है वो कूट कूट के भरा है। इसी हवाले से ये कह रहा है कि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक को तुम अल्लाह का वली कहते हो तो अपने अल्लाह के वली की शक्ल देख लो जब जिंदगी ऐसी शक्ल है अजीब गरीब तो जो लोग तुम्हारे मर चुके होंगे उनकी शक्लें कैसी होंगी और इस पर वाहवाही बटोर रहे हैं पैसे लोग इस पर फेंक रहे हैं लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि इसने क्या ऐसा कौन सा तीर मार लिया कौन सा तमगा जीत कर रहा है जो उस पर पैसे की बौछार की जा रही है। मैंने बोला है ना अपने घरों को जाहिल होने से बचा लो अपने घर वालों को एजुकेट कर दो इन लोगों की ऐसी मौत हो जाएगी ना कि जैसे ये कभी ये दुनिया में मौजूद ही नहीं है। बात तो सही है। खसूसन वो मौलवी साहब भी इसी चीज पर बात कर रहे हैं पंजाबी जबान में कि अगर शक्ल के ऊपर जन्नत और दोज़ख के फैसले होते हैं ना तो अबू लहब उस टाइम के सबसे हसीन और खूबसूरत नौजवान थे जितने भी सहाबा कराम थे लेकिन वो दोज़ख में जाएंगे और अगर शक्ल के मयार पे जन्नत दोज़ख का फैसला होता तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कभी भी जन्नत की बिशारत ना सुनाई जाती। तो इस तरह से शक्ल के ऊपर जन्नत दोज़ख का फैसला करने वाला ये कौन होता है तो इस चीज का कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। वर्किंग वुमेन के हवाले से आपकी क्या किस तरीके आजकल क्योंकि डिफरेंट ज़माना है हाउ शुड दे कंडक्ट और क्या रोल है वर्किंग वुमेन का? जहाँ तक खवातीन का सवाल है खवातीन को अपने जिंदगी के बेसिक नेसेसिटीज के लिए वर्क करने की जरूरत नहीं। इस्लाम खवातीन को महफूज रखता है। ये काम किसका मर्द का है? शादी के पहले उसके वालदा और उसके भाई को देखना चाहिए कि शी इज सिक्योर्ड फाइनेंशियली उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं। अगर खवातीन काम करना चाहती है तो कर सकती है लेकिन नंबर 1 वो शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वो शादीशुदा नहीं है तो अपने वालिद से मशवरा करना चाहिए। अगर शादीशुदा है तो शोहर से। वो इजाजत से कोई भी काम कर सकते हैं जो शरीयत के खिलाफ नहीं है लेकिन शरीयत के खिलाफ है शोहर भी हाँ बोलता है तो हराम है। मिसाल के तौर पे खवातीन मीडिया पे कैमरा के आगे नहीं आ सकती। माफ करना क्योंकि जब मीडिया के आगे आती खवातीन अगर पूरे नकाब में आ रही है जरा भी फितना नहीं है तो शायद कुछ उलमा मानेंगे लेकिन खवातीन अगर सही हिजाब से नहीं है और अगर सही हिजाब से है और चेहरा दिख रहा है तो फितना के कई उम्कानात। कुरान की आयत है हिजाब में औरत के पहले मर्द को कहा गया कुरान में सूरा नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी खवातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए आपके दिल में हलचल नहीं होती है मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। तो अगर खवातीन टेलीविजन के ऊपर है और मैं गुज़रे बसर करूं तो मैं तो गुनहगार नहीं लेकिन खवातीन जो आ रही है टेलीविजन पे तो 2 तरीके से ताली बचती है। अगर खवातीन हिजाब नहीं कर रही है और उसके ऊपर छिड़कानी करता है तो मर्द की गलती है लेकिन खवातीन की भी गलती है वो क्यों अपने आप को महफूज नहीं रखी तो दोनों की गलती ताली दुआ से बचती है। अगर वो हिजाब करते हो कोई छिड़कानी करता है तो खवातीन की तरफ वो खातून की गलती नहीं वो लड़के की गलती। आप समझे ना। तो मीडिया में मेरे हिसाब से भले मैं मानता हूँ कि चेहरे का नकाब फर्द नहीं है मैं वो उलमा की बात मानता हूँ लेकिन जो कहता है फर्द है अल्हम्दुलिल्लाह जो औरतें नकाब करती है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसके खिलाफ होने में। लेकिन मेरे घर में मेरी एक बेटी नकाब करती है एक बेटी नहीं करती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों के साथ हूँ। आप समझे ना। इसको बोलते हैं कि इस्लाम में अगर 2 राय है और दोनों बड़े बड़े उलमा की राय मैंने कहा मेरी राय फर्ज है तुम निकालो मैं क्यों करूँ उसका वो मेरी बेटी दोनों बेटी मानते
है क्या फर्ज नहीं है। एक बेटी बोलती है मुझे अफजल करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहां तक कि औरत का सवाल है, काम करने के लिए कोई भी काम कर सकती है, लेकिन शरिया के खिलाफ नहीं, मॉडलिंग नहीं कर सकती, सिंगिंग करे, इसको अट्रैक्ट करे, ये जायज नहीं है। तो ऐसे काम करे, मिसाल के तौर पे जब वो कभी जाती है काम करने के लिए, तो इट शुड बी सेपरेट सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस। दे कांट बी इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्स। हम जा रहे हैं भाई, हाउ आर यू, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, लड़का लड़की बात कर रहे हैं। लड़का लड़की बात करने की मुमानियत नहीं है, लेकिन मुझे बसर करना चाहिए। अभी वो इंटरव्यू ले रहा था, हमेशा मैं देख रहा था मेरे भाई की तरफ, आपकी तरफ में देखा ही नहीं। लोग बोलेंगे कैसा है, कैसा आदमी, लेकिन टेक्निक क्या कहता है, इंटरव्यू की आंख में आंख डालो। ये टेक्निक मैं सिखाता हूँ, इंटरव्यू की आंख में आंख डाल के बात करो, ये टेक्निक है, लेकिन टेक्निक से ऊपर शरिया है। तो शरिया जब मुझे इजाजत नहीं देता आंख में आंख डाल के बात करने की खवातीन के और खातून के, तो मैं शरिया को फॉलो, आप समझे ना। तो मैं नहीं देखूंगा कि आंख में आंख डाल के मेरा इंटरव्यू अच्छा रहेगा। अल्लाह के उसूल ऊंचे होते, ठीक है। इसीलिए कोई खातून आती है, डिस्टेंस रखो। अभी लास्ट इंटरव्यू में आगे पीछे रहो जरा, तो हमें उसूल फॉलो करना चाहिए। ऐसा नौकरी करना जो शरिया के खिलाफ ने बिल्कुल अलाउड है, और सैलरी भी सेम होना चाहिए जो मर्द की सैलरी है। यूएसए वो सब में खातून की सैलरी कम होती है, तो लेकिन काम करने की जरूरत ही नहीं। अगर वो चाहे कि मैं हिस्सा लूं तो कर सकती है इजाजत के साथ, और शरिया के कोई भी कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कि अगर आप एक खातून को 20 मिनट तक देख रहे हैं टेलीविजन पर, उसने मेकअप कर रखा है, वो न्यूज़ एंकर है, और अगर आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आ रहा, अगर कोई गंदी बात नहीं आ रही, कोई गंदी सोच पैदा नहीं हो रही, अगर कोई हलचल नहीं हो रही, तो फिर आपने कोई मसला है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुताबिक। सो ये बात जरूर ज़हन में रखिएगा। तो सबसे पहला इख्तिलाफ तो मुझे इस बात पर है कि उलमाए दीन को, उलमाए कराम को अपनी ज़ात को जहन में रखते हुए ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि जैसा वो सोचते हैं सबके सब लोग वैसा ही सोचते होंगे। यानी जाकिर नाइक साहब ने ये एतराफ़ किया इस क्लिप के अंदर कि मेरे मुताबिक अगर 20 मिनट तक एक खातून न्यूज़ एंकर को टीवी पर खबरें देते हुए देखकर किसी के जहन में कोई गंदी सोच पैदा नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 20 मिनट तक किसी भी खातून को मेकअप में देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, वो कोई फिल्म नहीं कर रही, वो नाच नहीं रही, वो गा नहीं रही, उसने कोई बेहुदा लिबास नहीं पहन रखा, एक न्यूज़ एंकर जो एक मुनासिब कपड़ों के अंदर होती हैं, उन्हें देखकर इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, उनके जहन में हलचल होती है। तभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल है कोई आदमी। तो ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि सबके जहन में गंदा ख्याल पैदा होता होगा। मुमकिन है डॉक्टर जाकिर नाइक के बरअक्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हों कि जो खबरों पर फोकस कर रहे होते हैं, जो ये देख रहे हो कि वो क्या बात कह रही है, वो फ़लस्तीन के बच्चों की शहादत की बात कर रही है वो न्यूज़ एंकर, वो बेरूत में होने वाले हमलों की बात कर रही है, वो पाकिस्तान के सियासी मामलात की बात कर रही है, वो महंगाई की बात कर रही है, वो लोगों का रोना पीटना दिखा रही है जो महंगाई से, बेरोजगारी से तंग हैं। इस पर हो सकता है बहुत सारे लोगों का फोकस हो, बजाय इसके कि वो खातून न्यूज़ एंकर को देखकर अपने जहन में हलचल पैदा कर रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है जाकिर नाइक साहब को ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए था कि एक मामला अगर उनके साथ होता है तो जरूरी है कि ये सबके साथ होता हो। यानी अगर वो 20 मिनट तक किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर नहीं देख सकते, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी मर्द या कोई भी शख्स किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर 20 मिनट तक नहीं देख सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरा ख्याल है, कि जो ये कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं। तो पहली बात मुझे इस बात पर संगीन एतराज है। सबसे पहले तो इकरारुल हसन साहब, बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरे इस इंटरव्यू के अंदर उस खातून की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। 20 मिनट देखना या 25 मिनट देखना तो साइड पे रह गया, उन्होंने एक नजर उठाकर भी सही से देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको वो जो इंटरव्यू मकसद था ना, वो एक खातून को देखना नहीं था, वो मकसद था उस इंटरव्यू में उनके सवालों के जवाब देना। उन्होंने एक मिसाल दी है कि इस्लाम के अंदर औरत के लिए पर्दे का खास ख्याल है, ताकि मर्द के दिल में औरत के हार श्रृंगार को देख के कोई भी वसवसा पैदा ना हो और वो बुराई या जिना की तरफ गामजन हो। इस चीज का मेरे ख्याल से आपको भी इल्म होगा, आप भी इस चीज को बेहतर जानते हैं। लेकिन अफसोस, आप भी रियलिटी शोज करते हैं, आपने लाखों करोड़ों इंटरव्यूज ऐसे दिए। मैं ये नहीं कहता कि आपकी सोच घटिया है या किसी ऐसी खातून को देख के आपके दिल में बात आती है तो ये आप जैसे लोगों पर उन्हें थ्रेट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक बात कर रहे थे कि पर्दा करना चाहिए आपको, मर्द को पर्दा करना चाहिए कि अपनी नजरें झुका के रखे, और खातून को पर्दा ये करना चाहिए कि अपने हार श्रृंगार को रखे तो सिर्फ अपने खावत के लिए रखे, गैर मर्दों को ना दिखाए, क्योंकि वो उसमें खुद भी गुनाहगार होगी और साथ के साथ जो लोग उसको देख रहे होंगे उनके दिल में जो वसवसे होंगे उनका गुनाह भी आएगा, उनको भी अलग से गुनाह मिलेगा। इस सवाल का एक नॉर्मली बंदा जिस तरह की मैं हूँ, आप जितना वेल एजुकेटेड और पढ़ा लिखा और समझदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी समझ आ रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जिस तरह से आपने हक खतीब को एक्सपोज किया था, आपने देखा था उस लानती कुत्ते झूठे इंसान को कि किस तरह से उसने दीन का लिबादा उड़ के लोगों को गुमराह किया। और आज से 200 साल पहले जब कैमरे जैसी इजादात नहीं थी, सोशल मीडिया की वार नहीं थी, तब भी लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाया जाता था, क्योंकि जहालत बहुत ज्यादा थी, लोगों के पास इल्म नहीं था कि वो हक और झूठ को समझ सके, उनके दरमियान का फर्क समझ सके। लेकिन अफसोस, उस टाइम के अंदर जो कहानियां घड़ी गई, हक खतीब जैसे जो लोग गए, आज उनको माशाल्लाह से अल्लाह का नेक वली और बहुत करामती बाबा बना के पेश करते हैं। और आप भी हक खतीब को जब एक्सपोज कर रहे थे तो आपने उन्हीं लोगों को डिफेंड किया कि इन्होंने खानकाहों को बर्बाद कर दिया,
है, जो अल्लाह के नेक वली और सच्चे वली हैं उनको इसने बदनाम कर दिया है, लोगों का खानकाहों से भरोसा उठ जाएगा। एक्चुअली तौर पे भरोसा उठ नहीं जाएगा। आपने जो उसको एक्सपोज किया, आपने सिर्फ उस शख्स को एक्सपोज नहीं किया, आपको पता नहीं चला आपने तमाम वली अल्लाह को एक्सपोज कर दिया। क्योंकि जिस तरह से खतीब ये मुंह से चैने जंजीरें और बरेडें और क्या कुछ निकालता रहा है, लोगों को खुद के आगे झुकवाता रह गया, ये गुलशन खुसरा बन के लोगों के सामने बन ठन के फिरता था और खुद को गौसुल वक्त गौसुल आजम पता नहीं क्या कहता था। तो आपने जो उसको एक्सपोज किया तो लोगों के ज़हनों गुमान में ये सवाल आया है कि आज तो कैमरे की वार है, सोशल मीडिया वार है, कैमरे जैसी तादाद है, तो इस शख्स को इकरार भाई ने एक्सपोज कर दिया। यहाँ तक बात बहुत अच्छी थी। तो लोगों का गुमान ये भी किया होगा कि जब कैमरे की तादाद नहीं थी तो लोगों को तब भी तो ऐसे बेवकूफ़ बनाया गया होगा, कुछ जहालत तब भी बहुत ज़्यादा थी। इस दौर की निस्बत उस टाइम में जहालत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ आते हैं, मुझे बताएं इन्होंने कितने लोगों को मुसलमान किया। जो आपकी मेरी डिबेट से मुसलमान तो दूर की बात है, आप और मेरी डिबेट सुन के वो हाँ ना में जवाब भी नहीं दे सकते। इन्होंने हर लैंग्वेज के अंदर हर दीन को स्टडी किया और खालिस दीन जो कुरान मजीद हक किताब है उनको डिफेंड करते हुए इन्होंने ना जाने कितने लाखों लोगों को मुसलमान किया और पक्का मुसलमान किया। बाबा परसी की तरफ नहीं लगा। इलियास कादरी की तरह ये लोगों को अपने आगे झुकाता नहीं है, कहानी किससे नहीं सुनाता। और भी ना जाने कितने ऐसे पाकिस्तान में लोग हैं जो कहानियां किससे सुना के लोगों के ईमान को भी ज़ाया कर रहे हैं और उनके बाल को भी ज़ाया कर रहे हैं, जो बेचारे दिन भर की मेहनत से हलाल कमाते हैं। आप में कभी इतनी ताकत हुई कि आप इलियास कादरी के सामने फ्रंट पे बैठ के उनको एक्सपोज करें, जो कि उनके इमरान अतारी ने झूठ क्लेम की? वहां तो आपकी बात नहीं चली। यहाँ आपने इंटरव्यू वाली बात पकड़ ली और माशाल्लाह से वीडियो बना दी, एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी आपने। इलियास कादरी के हवाले से आपका क्या ख्याल है? उनको आप क्या गौसुल वक्त गौसुल आजम मानते हैं, अल्लाह का नेक वली मानते हैं? उनके बारे में तो इमरान अतारी ने क्लेम किया है कि उन्होंने नबीनों को आंखें दी हैं। हबीब अतारी ने क्लेम किया है। एक अफ्रीका के रहने वाले भाई ने ये बताया कि एक सब्ज पगड़ी वाले बंदे ने मुझे जो है वो नमाज पढ़ाई है, मुझे कलमा पढ़ाया है, मुझे उसने मुसलमान किया है। और जब मैंने तस्वीर दिखाई तो वो अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी, मतलब इलियास कादरी के चर्चे ऐसे हो रहे हैं कि वो बैठा कराची में, लेकिन कराची में भी बैठा है और मदीने में भी रिप्रेजेंट है। तो आप उनको जाके बोले ना। और एक और करामत कि जब तक इलियास कादरी ने चाय नोश नहीं फरमाई तब तक ड्राइवर गाड़ी आगे लेके नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि उसमें फनी खराबी हो गई थी, जैसे चाय खत्म हुई फिर गाड़ी आगे चली। तो ये करामतें जो हैं, आप इस चीज़ को मानते हैं, इन चीज़ों पर ईमान रखते हैं? अगर आपने डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात को हाईलाइट किया तो ये इतनी सारी बातें आपके कराची पड़ोसी शहर में होती फिर रही हैं, वहाँ जाके आप उनसे डिबेट करें, कैमरे लेकर जाएं, लोगों को लेकर जाएं, उनसे मुकालमा नवीसी करें, कोलैब करें कि बताएं भाई ये जो चीज़ें आपने लोगों में मार्केट में छोड़ी हुई हैं, बहुत 20 साल पुरानी 15 साल पुरानी, आज इनको करके दिखाएं। लोगों को इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बिहाफ पे लोगों ने आपको गौसुल आज़म और पीराने पीर पता नहीं क्या माना हुआ है, तो वहाँ आपकी ज़बान नहीं चलती। इस चीज़ का मुझे जवाब जरूर देना। और एक ऐसे शख्स के एक छोटी सी बात की वजह से आप उसके पीछे पड़ गए हैं और आप कह रहे हैं कि औरत को देख के उनके दिल में वसवसे होते होंगे। भाई वो इंसान है, फरिश्ता तो है नहीं। अगर मेरे जैसे इंसान को, आप जैसे इंसान को, हर इंसान को, किसी भी खातून को देख के दिल में कोई भी वसवसा उसके हार श्रृंगार की वजह से, उसकी बेपर्दगी की वजह से आता है, तो हम इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, हम में जिस्म है, फीलिंग्स है, ये मामला हो सकता है, फरिश्ते नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे की इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं और उनकी इतने सालों की मेहनत जो कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मुसलमान किया, वो आप डिनाई कर रहे हैं सिर्फ इस बात की वजह से, तो मैं आपको सलाम पेश कर सकता हूँ आपकी अकल और आपकी अजमत को। और अगर आप इन चीज़ों को एक्सपोज करने वाले इकरारुल हसन भाई हैं जो ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, दुनिया वालों के सामने लेकर आते हैं, हक और सच का फैसला करते हैं, तो इलियास कादरी की तरफ रुजू करिए, फिर मैं आपको सलाम करूंगा और इस वीडियो को डिलीट करूंगा तो अगर थोड़ी बहुत मैंने आपके खिलाफ बनाई है। इस बारे में मेरे जितने भी देखने वाले हैं उनकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में आपने जरूर बताना है। तो खैर ये वीडियोस यहाँ तक की उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम एक्सप्लेनेशन पसंद आ चुकी होंगी। अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो या जिस बात में आप मेरे साथ ना हो तो आपने कमेंट्स करके मुझे वो जरूर बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करके उस चीज़ का जवाब आपको दे सकूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा दी तक को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।